علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب نور حسن رضوی برکاتی صاحب قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ اہل سنت امید کے شہر کرتے ہیں کہ محمد رضا بھائی آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے حضرت، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی جناب نور حسن رضوی برکاتی صاحب قبلہ، جب میرا نکاح ہوگا اور میری شادی ہو جائے گی میں بھی اپنے بچے کا نام نور حسن رکھوں گا۔ اچھا میرے دوست، میرے بھائی، میرے انشاءاللہ ضرور رکھوں گا۔ نور حسن نام اگر ہوگا تو شیروں کی طریقے دہاڑے گا۔ شکریہ جزاک، یہ تو آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ۔ جی گفتگو کرنے کا انداز جناب نور حسن رضوی برکاتی صاحب قبلہ کے پاس ثم الحمدللہ بہت اچھا ہے انداز گفتگو۔ بس میں تو کہتا ہوں جتنے بھی آپ کے بچے ہوں، لڑکی یا لڑکا جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، عالم دین ضرور بنانا اور اسی راستے پہ جو ہے چلا دینا کہ میرے بچوں شیطانوں کا رد کرو۔ اور مجھے یقین بھی ہے انشاءاللہ کہ ایک بھائی کی اصلاح بھی آپ بہت زبردست کریں گے، کیونکہ ایک بھائی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو بندوں کو بھی مانتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کو بھی مانتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو بھی مانتا ہوں۔ ایک حساب سے وہ جتنے فرقے ہیں سب کو مانتا ہے، تو میں نے کہا آپ کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے ان کو وقت دیا تھا، اس وقت انہوں نے کال کیا تھا، اس وقت میں فارغ نہیں تھا۔ اچھا تو جناب نور حسن رضوی برکاتی صاحب قبلہ آپ اصلاح کر دیں اس کی، تاکہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر آ جائے، لائن پر آ جائیں۔ ابھی لائن پر ہی ہیں کیا؟ نہیں لائن پر تو نہیں ہے۔ تو صبح میں بات کریں یا ابھی؟ صبح میں تو مجھے وقت ملتا نہیں ہے۔ اچھا تو آپ اصلاح کر دیں، اس کو سمجھا دیں کہ حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھ جائے۔ دن اور رات کو کنورٹ کرنے چاہتے ہیں یہ لوگ، تو دن اور رات کنورٹ تو ہو نہیں سکتے۔ جی تو لائن پہ لے ہوگے کیا ان کو؟ جی آپ کی اجازت۔ اچھا محمد انیس مکندر مہاراشٹر کا رہنے والا ہے۔ جی لے لو لائن پہ۔ has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। جی جناب آپ نے اس دن کال کیا تھا، میں ریپلائی نہیں کر پایا، آپ کو کال ریسیو نہیں کر پایا کیونکہ مصروفیت بہت تھی۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں جناب نور حسن رضوی برکاتی صاحب قبلہ۔ آپ اپنی بات اب رکھیے، جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں دو بندوں کو بھی مانتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کو بھی مانتا ہوں، اس تعلقات سے ہمارے بڑے ہیں ہمارے جناب نور حسن رضوی برکاتی صاحب قبلہ، وہ اس تعلقات سے آپ کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو آپ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں ویسے ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو ان کا بھائی کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام محمد انیس۔ محمد انیس؟ جی اچھا کہاں سے ہیں انیس بھائی؟ ہلو، پونے مہاراشٹر۔ اچھا مہاراشٹر سے ہیں؟ جی اچھا تو آپ جو ہے کس مکتب فکر کے ساتھ ہیں ابھی اس وقت؟ میں تو اہل سنت والجماعت سے ہوں جی، اللہ کو رب ماننے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنے والا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، سن کر بہت ہی دل خوش ہوا۔ جی اور یہ حق بھی بنتا ہے ایک امتی کا، جی ہے نا؟
جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو مان لیجیے جیسے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے نا, اور جس سے انسان دشمنی رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اس کی برائی کرتا ہے ہمیشہ. یہ ماحول رہا ہے, اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی سچائی ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جی تو ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, تو تھوڑا سا میں واضح کرانا چاہوں گا آپ کے ذریعے کہ اہل سنت سے آپ کی مراد ہے تو ہے کیا, دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث یا کوئی اور؟ جی بھائی جان. ہلو, ہاں میرے طرف آواز نہیں آئی. جی ہلو, پتہ نہیں نیٹ ورک میں شاید پرابلم ہے کیا. دیوبندی. اچھا دیوبندی. اچھا دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ, ہے نا؟ اچھا جی. تو آپ سے بات جاننا چاہوں گا, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں, رسول اللہ کو ماننے والا ہوں, ہے نا؟ تو اللہ رب العزت ایک نور ہے نا, اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں. خدا بے شک خدا مالک ہے ساری کائنات کا, ہمارا رب ہے, ہمارا پالنہار ہے. جی بے شک. ہاں, باقی دنیا کی ساری شے, ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا, سب اس کے دستے قدرت میں ہے. یہ جو ہوا ہے نا, ہوا یہ بھی مخلوق ہے اور اس کے دستے قدرت میں ہے نا. اس کی بغیر اجازت کے ایک پتا نہیں ہل سکتا. جی تو جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اوم کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اوم ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اوم کچھ نہیں ہے, ایک ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا. سنا ہوگا نا آپ نے وہ بیان ان کا. ہلو احمد رضا بھائی, میری آواز آ رہی ہے ادھر؟ ہلو. جی اچھا, تو آپ نے وہ بیان سنا ہے نا؟ ہاں سنا ہے نا. جی. تو ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ اوم ایک ہوا ہے. جی تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہوا جو ہے مخلوق ہے, اور ہوا ایسی مخلوق ہے کہ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی, ہے نا؟ جی اگر آپ حکم فرماتے تھے ہوا کو تو وہ آپ کے حکم کے تابع دار تھی. آپ کی حکومت سمندروں پر تھی اور جن و انسان پر تھی, اور سمجھ لیجئے کیا بولتے ہیں, ہوا پر بھی تھی, ہے نا؟ مطلب پرندوں پر بھی تھی, سب چیز پر آپ کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی حکومت رہ چکی ہے نا؟ جی ہاں. تو ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ اچھا اگر تم اس کو اوم مانتے ہو تو ہم بھی تو اسی کو رب مانتے ہیں, خدا مانتے ہیں. اس کے پہلے بھی تو ارشد مدنی صاحب نے کچھ اعلانات کیے. کیا؟ یہ جو نظام چلاتا ہے, کیا چیز؟ ساری کائنات کا, ہاں
सारी कायनात का जो निजाम चलाता है, जी 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 जी, हवा का निजाम, हाँ हाँ हाँ, परिंदे का निजाम, अच्छा अच्छा, उसके पहले उन्होंने कुछ बातें और बताई थी ना। अच्छा अच्छा, तो फिर जब वो सब बातें बताई थी तो उन्होंने फिर इस बात को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कैसे कह दिया कि तुम उसको ओम कहते हो जो हवा है, हम उसको अल्लाह कहते हैं, ये कैसे कह दिया? ओम वाले अपन हवा बोल दिए, लेकिन ओम जो है वो ओम उन्होंने किसको समझा? हवाओं का निजाम चलाने वाले को समझा। अब इसको तो अरशद मदनी साहब भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आप तो क्लियर कर ही नहीं सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। अरे तो क्लियर किए ना, हवा वो समझा ना, वही चाहते हैं। अच्छा चलिए, इस बात को आप भी नहीं मानेंगे, बातें बताई ना उन्होंने। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए भाईजान, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर एक चीज का इल्म है कि नहीं? बेशक है ना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फला चीज नहीं जानता, अगर जानता तो ऐसा करता, अगर उसको इस बात का इल्म होता तो नहीं जानता, अगर ऐसा जानता तो ऐसा करता। हाँ तो ये तो हमारा अकीदा नहीं है। हाँ, अगर जिसका भी ये अकीदा हो, जिसका भी हो, तो मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? नहीं, अब इसके बारे में तो फतवा उलमा इकराम देंगे, अभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई अल्लाह के इल्म का इनकार आ रहा है भाईजान, अल्लाह के इल्म का इनकार आ रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में क्या? अच्छा एक मिनट, कुरान पाक की आयत का इनकार करने वाला कौन है, मुसलमान या काफिर? कुरान का इनकार करने वाला तो अभी वही होगा, शक है, अल्लाह का नाफरमान। शक है इसमें भी, कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर होता है। और कुरान में आया है, एक मिनट, कुरान में आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक चीज का जानने वाला है, सारे आलम का जानने वाला है। आलिमुल गैबी व शहादा, हर एक चीज का इल्म रखने वाला है, हर एक चीज को जानता है अल्लाह ताला, है ना? आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर गैब का जानने वाला है। बेशक बेशक बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हर गैब का जानने वाला है, ये कुरान बता रहा है, तो फिर इसी कुरान पर अमल करते हुए अगर कोई ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इस चीज को जानता तो ऐसा करता, तो बताइए अल्लाह के इल्म की यहाँ नफी हो रही है, कुरान पाक की आयत का यहाँ इनकार आ रहा है, यानी खुदा नहीं जानता। वो तुम्हारे तरफ से समझा रहे, सामने वाला क्या समझा रहा वो किसको? वैसे मुझे पता है कि असल में देवबंदी हजरात जो ना थोड़े से मतलब मैं अपनी सही बात कह दूंगा तो आपको शायद बुरा लग जाए। और वैसे एक बात बताऊं, एक बात कहता हूँ, बहुत सारे बरेलियों से बात की हो तो सारी बातें कुछ आगे की सोच के बात करते। मैं खुद देवबंदियों में रह चुका हूँ और 15 साल देवबंदियों में रहा हूँ, और मैं इस वजह से निकला था, और फिर जी मैं इस वजह से निकला था कि देवबंदी हजरात जो बात अंबिया इकराम के लिए, औलिया इकराम के लिए मना करते हैं, इनकार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, वही चीज अपने घर के बुजुर्गों के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं। देवबंदियों से निकलने की मेरी ये वजह रही थी, और उसी वक्त से लेकर आज तक मेरा देवबंदियों को चैलेंज है, समझे, कि मेरे सवालों का अगर तुम जवाब दे दो तो मेरी तरफ से इतना इतना इनाम है। सवाल क्या देंगे यार, उल्टा हम सवाल पूछेंगे तुमको, तुम्हारे खुराफात जो तुमने गढ़े हैं उसके बारे में उल्टा हम पूछेंगे। अच्छा, हमारी कौन सी खुराफात है, जरा चलिए उसको बता दीजिए, एक खुराफात रखिए। फूल, चादर, अगरबत्ती, मोमबत्ती। अच्छा, तो अगर कोई फूल, चादर, अगरबत्ती, मोमबत्ती कर रहा है तो ये कुफ्र है, शिर्क है, क्या है? ये बिदअती काम है, लद्दू काम है, और हर गुमराही वाला काम है, और गुमराही जहालत पे लेके जाती है, जहालत फिर अल्लाह का नाफरमान बनता है। नहीं, अगर बिदअत है तो कौन सी बिदअत है, जरा बिदअत की तारीफ कर दें। जो जो नए नए काम अपन रिवाज में लेकर आ रहे हैं, आजान देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये रिवाज है कि भाई लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए एक आजान दी जाती है, तो आजान के पहले तुम्हारे को माइकों के अंदर दरूद तुमने चालू कर दिए। अच्छा, तो तुमको मालूम है दरूद शरीफ? नहीं, मैं बिदअत की तारीफ पूछ रहा हूँ। हाँ, चलिए ये नए काम तो चलिए आ गए, आपने कह दिया नए काम, सारे जो खुला बिदअत तो सुनो पहले वो बताते बिदअत की आप तारीफ करेंगे भाईजान?
बड़ा अच्छा होगा अगर आप पहले बिदअत की तारीफ करते हैं, हमें समझाते हैं। लोगों के नए नए तरीके वजूद में लाएंगे, नहीं खुराफात फैलाएंगे, यही बिदअत की काम है। नहीं, मतलब ऐसे नहीं, बिदअत की तारीफ क्या है और किसको बिदअत कहा जाता है और बिदअत की तारीफ कितनी है, क्या क्या है। बिदअत है तो कै तरह की है जी, बिदअत कै तरह की है और क्या क्या है। नए नए काम तराशी करेंगे। अच्छा चलिए नया काम, चलिए बिदअत हो गया, मगर बिदअत की तारीफ तो करेंगे ना आप कि कौन सी बिदअत जो है नया काम उम्मत के अंदर नया काम कुरान हदीस से। अच्छा चलिए नया ही काम है ना, उम्मत का इसके ऊपर इज्मा नहीं है। अच्छा नया काम है, उम्मत के ऊपर इसका इत्तेफाक नहीं है। वो अच्छा काम अपने मनस से अपने तरीके से। जी माशाअल्लाह, नया काम है ना। तो हाँ। अब मुझे ये बताइए कि नमाज के लिए अभी बताते रहने का, अभी बताने का किधर मौका है। अभी जो मेरे जो सवाल है उसका जवाब दो ना यार। तुम यार तारीफ ही नहीं कर रहे हो, बिदअत की तारीफ ही नहीं कर रहे हो। बिदअत की तारीफ करोगे तभी तो कुछ जवाब दिया जाएगा। मैं आवाम है, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पर करते हैं इसको, और ये बिदअत नहीं है, ये अच्छा काम है, मुबाह काम है, करते तो मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल को, मुस्तहब काम को करना वाई से बरकत है, वाई से सवाब है। ठीक है सुनो, फिर अभी जो अल्लाह के देखिए सुनो नहीं, देखिए कोई ठोस दलील पेश करो जिस पर आप जो है बढ़िया तरीके से आप। हाँ दलील पूछ रहा हूँ अभी तो मैं दलील पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिदअत की तारीफ कीजिए। बिदअत की तारीफ यही कि नए नए काम करना, अपने तरीके से काम करना। फिर वही बात, नया काम तो ये भी है कि तुम जमातें निकाल रहे हो, नया काम तो ये भी है कि मदरसे बन रहे हैं और मदरसों में जो है क्लास लग रहे हैं। सुनिए आप मेरी भी सुनेंगे कि नहीं, नए कामों के ताल्लुक से कुछ सुनना गवारा करेंगे। नया काम क्या है जो हुजूर ने नहीं किया। एक मिनट, नए काम से मुराद क्या है। अच्छा नए काम से मुराद क्या है। जिससे उम्मत के अंदर इंतशार हो जाए, जिससे। अरे यार भाई मैं ये कह रहा हूँ बिदअत की तारीफ तो करें कि नया काम कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, तो उसकी थोड़ी बहुत वजाहत करेंगे तो अच्छा होगा। वजाहत कर दिया ना अभी कि ये। अरे यार बिल्कुल यार, थोड़ा करते क्या ऐसा करो, किसी मौलवी को अपने किसी मौलवी को लेके आओ, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो मौलवी को बाद में लाएंगे, मेरा तो सवाल का जवाब तो पहले। अरे जो सवाल ही नहीं है उसका क्या जवाब दिया जाए, जो सवाल ही नहीं है उसका क्या जवाब दिया जाए। आजान देते हैं, तो अजान हम देते हैं तो ये बुरा काम है। चलिए ये बताइए, अजान पढ़ने में सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, दरूद शरीफ पढ़ने में सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुरान और हदीस से साबित है, ये कुरान और हदीस से साबित है। अरे अजान से पहले या अजान के बाद, अजान से पहले या अजान के बाद, नमाज से पहले या नमाज के बाद, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, सोने से पहले या सोने के बाद, जब भी पढ़े जब ही सवाब, जब पढ़े जब ही सवाब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुरान से साबित है। अगर दरूद शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, कुरान से साबित करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ कुरान से अगर उसका जवाब नहीं देंगे लोग, इंसान बात वो अल्लाह के नबी कुरान पाक से दरूद शरीफ का सबूत दूंगा, दरूद व सलाम का कुरान पाक से जवाब दूंगा। तुम्हारे पास कोई ऐसी जो है दलील नहीं है जो हमें लाजवाब करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तुम्हारे हर एतराज का जवाब है, मगर तुम्हारी मक्कारी का जवाब नहीं। जनाब आपके हर सवाल का जवाब है, मगर आपकी मक्कारियों का जवाब नहीं। एक ही सवाल को पूछ रहा, अभी तो दूसरा। अरे कहाँ कोई, अरे सवाल हो तभी तो कोई जवाब दिया जाए। सवाल तुमको खुद नहीं मालूम है। मैं कह रहा हूँ बिदअत की तारीफ करो तो तुम्हें यही नहीं पता कि बिदअत है क्या और तारीफ क्या है। यार जब बिदअत को तुम समझोगे तभी तो कुछ तारीफ करोगे, बिदअत की तारीफ कर दो। और आपने कहा कि नया काम, तो ये नया काम कब से, किस वक्त के बाद, भाई ये सब तुम साबित करोगे ना, फिर तो मैं बताऊंगा कि देवबंदर क्या क्या नए काम करते हैं, फिर तो मैं गिनती गिनवाऊंगा और फिर उसी के हुक्म में तुम्हें गुमराह साबित करूंगा इंशाअल्लाह। जब मेरे सामने वाला मेरे इल्म के बराबर वो बोल ही नहीं रहा है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे पा रहा, तो मैं क्या तुम्हारे सामने बात रखूं। तो मेरे सवाल का जवाब तो ना जो मैंने कहा कि ये मुस्तहब अमल है और हम इसको करते हैं। हाँ सुनो ना, अगर मुस्तहब अमल है, अगर तो मुस्तहब अमल की थानवी जी ने कहा है कि वो दलील पेश करेगा जो इसका इनकार कर रहा है, करने वाले से दलील नहीं मांगी जाएगी। तो ये दलील भी तुम ही लेकर आओगे।
थानवी जी को मानते हो कि नहीं मानते? तुम दो मत। अच्छा एक मिनट, थानवी जी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के जैसा है, फिर भी आप उनको हकीमुल उम्मत मानते हो, ऐसा क्यों? बात कर रहा हूँ मैं, आम बात कर रहा हूँ मैं, लोगों में जो। अरे आम और इमली नहीं यार, आम और इमली नहीं आम और इमली नहीं, तुम यार बड़े गुस्ताखे रसूल हो, और तुम ऐसी बात लाते हो जिसका कहीं मतलब कोई इनकार ही नहीं हो। देवबंदी बड़े मक्कार होते हैं, देवबंदी अल्लाह को ओम बता रहे हैं, ओम को अल्लाह बता रहे हैं, जाहिल हो। अरे अल्लाह को तुम ओम बता रहे हो, बेशर्मो, और हमारी चादर और फूल पर तुम एतराज कर रहे हो, चादर और फूल पर एतराज कर रहे हो। ये मुस्तहब अमल है, ये मुस्तहब अमल है। और सुनो, अगर वाकई ये मुस्तहब अमल नहीं है, अच्छा सुनो, सुन तो लो यार, अच्छा सुन तो लो, तुम्हारा अरशद मदनी, ये महमूद मदनी अजमेर शरीफ गया था, फूलों की डलिया सर पर रख के और चादर लेके, लगाओ उससे गुमराहियत का फतवा, उसने ये बिदअत की थी और वो गुमराह हो गया और वो जहन्नम में गया, लगाओ फतवा। तुमने उसको मकसद बनाया है ना। अरे यार हमने क्या बनाया, नहीं बनाया, तुमने कहा कि ये बिदअत है और बिदअत गुमराही है, तो फिर ये गुमराह हुआ कि नहीं हुआ आपका महमूद मदनी? अरशद मदनी का जो भतीजा है ये गुमराह हुआ कि नहीं, और जहन्नम का हकदार बना कि नहीं, बस इतना बता दो आप मुझे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, मगर तुम्हारी मक्कारियों का जवाब नहीं है। अरे हजरत ये देवबंदी क्या, ये भाईजान ये साला बेवकूफ इंसान है, समझे, पागल है ये तो कह रहे थे कि मैं अपनी इस्लाह करवाना चाहता हूँ। ये कुछ भी नहीं जानता है, ये कुछ भी नहीं जानता है, ये पागल आदमी है। वो कह रहा था ओम, अरे ये बदबख्त लोग ओम को अल्लाह मानते हैं, बताइए, जो कि हवा है। ओम जो है वो निर्जीव है, ओम जो है वो निर्जीव होता है, उसमें जान नहीं होता है, इसमें जान नहीं जा रहा है। हमने बताया कि अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है, और हम अल्लाह से मांगना, समझे, और ये हवा को रब मान रहे हैं, हवा को खुदा मान रहे हैं, हवा को ओम मान रहे हैं, बताइए, ये है इन देवबंदरों की हकीकत। आला हजरत में जाके फतवा लेकर आए और तुम ही लोगों को गुमराह कर दिए उधर से। अरे तुम बड़े हरामी लोग होते हो यार, तुम मान के नहीं देते हो, समझे। चलो यार खत्म करो, ये नहीं मानेगा, ये जहन्नम में जाएगा डायरेक्ट थानवी के साथ। हाँ ये थानवी हरामी के साथ ये जहन्नम में जाएगा, ये मानेगा नहीं, बहुत बड़े मक्कार होते हैं, ये बहुत बड़े हरामी होते हैं, ये समझने, ये बातों के भूत नहीं, लातों के भूत हैं, समझे हजरत, ये बातों से नहीं, लातों से मानने वाले लोग हैं, ये भाग गया, ये मानने वाला नहीं है। बताइए, मतलब ये तो मुझसे कह रहा था कि भाई मैं आला हजरत को भी मानता हूँ, ये बहुत बड़ा हरामी है, मक्कार है, ये मक्कारी कर रहा है। मैंने इसने कहा बिदअत, तो मैंने कहा इससे बिदअत की तारीफ कीजिए, तो इसने बिदअत की तारीफ नहीं की। अगर ये बिदअत की तारीफ करता तो मैं इसके तमाम मुल्लाओं को टांग देता मगर ये बहुत बड़ा हरामी और चालाक भी है, होशियारी दिखा रहा है, ये बहुत बड़ा शैतान है, ये लोगों को गुमराह करता होगा। अच्छा हाँ ये लोगों को गुमराह करता होगा, बहुत बड़ा हरामी है ये, वलीद इब्न मुगीरा के जैसा लग रहा है। खुल करके अपनी पहचान क्यों नहीं बतलाई? मुनाफिक है ये, मुनाफिक। सही कह रहे हैं, मुनाफिक को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हाँ मुनाफिक को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हाँ बताइए, उधर वो शैतान, बताइए ओम को अल्लाह बता रहा है कि जिसको तुम ओम कहते हो हम उसे ही तो हम अल्लाह कहते हैं, जबकि वो खुद अपने मुंह से बता रहा है कि उन्होंने बताया कि ओम कुछ नहीं है, एक हवा है। तो ये शैतान, ये मैं कहता हूँ ये काफिर कहता है कि हाँ उसे ही तो हम अल्लाह कहते हैं। ये कहता है कि मनु है, ओम असल में मनु है, और ये लोग उसको खुदा कहते हैं, असल में उसी को तो हम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कहता अल्लाह कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। मनु हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इसने कहा है बाद में। अच्छा बाद में कहा है। हाँ अच्छा योगी आदित्यनाथ का बयान आया हजरत, आप कहेंगे तो वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा अरशद मदनी के ताल्लुकात से, कि उसने कहा है योगी ने सोशल मीडिया पर कि भाई वो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने पढ़ा है तो वही तो कहेंगे ना वो इस ताल्लुकात से। तो वो सही कह रहा है कि जो जिसका होता है उसी की तारीफ करता है भाईजान। मैंने कहा ना
शुरू में ही मैंने कहा कि जो जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है उसी की तारीफ करेगा जी, समझे। मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूं तो आपकी तारीफ करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, चाहे आप में 1000 बुराइयां हो। कुफ्फार इनसे बड़े राजी हो गए। हाँ, कुफ्फार बहुत राजी हैं इनसे। सही बात है। बतलाइए, जो लोग जमात में जा रहे हैं जानबूझ के गुमराह हो रहे हैं नूर भाई, जी जी जी, अकल नहीं है उनको इस बात के बारे में कि यार मतलब जो है लोग यार देखिए, अल्लाह तबारक व तआला साफ साफ निशानी दिखा रहा है, इससे बढ़ के और क्या निशानी होगी यार। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा है हजरत। जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है वो कभी नहीं देख सकते। जो मोमिनों को बिदअती और मुशरिक का फतवा लगाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उनको ऐसा ही बना देता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ये बहुत मीठा था, बहुत मक्कार है ये। जी, जब मैंने इससे पूछा कि बिदअत की तारीफ कीजिए तो बिदअत की तारीफ नहीं कर रहा है और कह रहा है कि तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। अबे शैतान के पुत्र, तेरा जवाब क्या दिया जाए जब तू खुद ही मतलब सही नहीं उतर पा रहा है। और बगैर सबूत के और बगैर दलील के मुझे कुछ सुनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उल्टा करके लटका के मारता हूँ। हाँ जी, जब तक मुझे मजा ही नहीं आता, जब तक कि उसको सही तरीके से जो है खैर ना कराऊं मैं। जी जी, बिल्कुल उसके मुंह से सारी चीजें ना उगलवाऊं। जी, अगर वो बताता कि हुजूर के जमाने के बाद जो नई चीजें पैदा हुई हैं वो बिदअत है और वो जो भी करेगा गुमराही है, तो फिर मैं इसे बताता कि देख तेरा महमूद मदनी अजमेर शरीफ गया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और चादर फूल लेके गया, बता क्या उसे जहन्नम में गया? अगर गुमराही है तो बोल जहन्नम में गया। तारिक जमील तेरा बाप मुनाफिक काफिर, वो अजमेर शरीफ गया और शियाओं के हाथ चूम रहा था और वो भी जो है फूल चढ़ा के आया वहाँ। क्या काफिर है वो, गुमराह हो गया, जहन्नम में गया। जी, मैं तो पूरी डिटेल के साथ इसको बताता, मगर इसने कुछ तारीफ की ही नहीं। जी, अब तारीफ नहीं की तो ये अपने तरफ से सब कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता ना हजरत। जी जी जी, सही बात है। हाँ, जब आगे मौजू की बात ही नहीं करेगा तो फिर बतला। अब दूसरी बात, ये मदरसा हुजूर के जमाने में था ही नहीं। इस तरह जैसे कि सिपारे वाले अलग हैं, उर्दू वाले अलग हैं, हिंदी वाले अलग हैं, इंग्लिश वाले ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो और पहले क्लास वाले इधर हैं और दूसरे क्लास वाले इधर हैं और तीसरे क्लास वाले इधर हैं, ऐसा था क्या कहीं? असल मकसद इनका ये है कुफ्फारों को राजी करना हजरत। हाँ हाँ, ये काफिर लोग हैं और काफिर काफिर को ही खुश करता है। हाँ, और कुफ्र एक मिल्लत है और ये सारे काफिर एक जगह जमा थे। जी, है ना, कुफ्र एक मिल्लत है और ये सारे काफिर एक जगह जमा थे। अच्छा, नूर भाई महमूद मदनी ने एक बयान दिया था और जहाँ पर सारे मंच के लोग जमा हुए थे, सिख लोग, ईसाई लोग भी थे और ब्राह्मण लोग भी थे। तो वहाँ पर उसने कहा कि कानून नाथ उम्मत वाहिदा, सबके सब एक उम्मत आदम की औलाद में से है महमूद मदनी ने। उसके बाद वो हिंदू भड़क गया, ब्राह्मण जो था ब्राह्मण, उसने कहा कि भाई जो कुछ इन्होंने बयान किया हम उससे मुतासिर नहीं है और ये जो आदम है या दीन है इस्लाम, हम इनको मानते नहीं, जानते नहीं, ये था ही नहीं कभी। ठीक है, ये कहकर इसके मुंह के सामने चला गया और कहा कि मैं उस पर इसको चैलेंज करता हूँ। क्लिप मेरे पास मौजूद है। महमूद मदनी को वहीं पर चैलेंज करता है कि मुझसे मुनाजरा डिबेट कर ले। बुढ़े को या जमान वाले को? बुढ़े को या जमान वाले को? वो जवान वाले को, महमूद मदनी को। हाँ हाँ, महमूद मदनी को। अच्छा अच्छा जी, तो मेरे पास भेज देना। मैं भेज दूंगा जी जी, आपको दूंगा जी भाईजान। बतलाइए, उनके अंदर इतनी गैरत नहीं कि उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर सके। हाँ अच्छा, मैं कुछ और भी बताना चाह रहा था उस मरदूद को, आपके जरिए से मैं बता दूं। इस शैतान ने कहा कि जो नई चीज है वो बिदअत है। हाँ, मस्जिदें हुजूर के जमाने में सब कच्ची थी और मेरे ख्याल से मेरे होश तक भी कच्ची थी जी, है ना? जी जी, कई जगह मस्जिदें कच्ची थी और मेरे ख्याल से हमारे दादा परदादा के जमाने तो सब कच्ची थी। कच्ची थी, सही बात है ना? सही बात है, कच्ची थी। तो अभी इजाद हुए हैं, जो अभी ये पत्थर लगने शुरू हुए हैं, पक्की मस्जिदें बनने लगी, मस्जिदों में मार्बल लगने लगा
مسجدوں میں لائٹنگ ہونے لگی، مسجدوں میں پنکھے لگنے لگے، مسجدوں میں اے سی لگنے لگی، مسجدوں میں ٹنکی لگنے لگی، ہے نا؟ یہ سارے نئے کام ہیں، حضور کے زمانے کا ایک بھی نہیں ہے. سمجھے حضرت؟ یہ عقل کے اندھے اور شکل کے گندے اور دیو کے بندے تھانوی کے ناپاک نطفے یہ حرام خور بدعت بول دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ بدعت کہاں تک جائے گی، یہ ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائے گی. سمجھے حضرت؟ اور حضور نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد جو کسی اچھے کام کو ایجاد کرے گا اس کو اس کے اچھا کام شروع کرنے کا نفع ملے گا، فائدہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. اور جو لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے، اس کام کو کرتے رہیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا اس کو بھی سب کے برابر اکیلے کو ملے گا. جی. اور عمل کرنے والوں کے عمل میں یعنی ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، کوئی کمی نہ ہوگی. جی. جس نے شروع کیا اس کو سب کا ثواب ملے گا. جی. اور جس نے کسی ایسا کام کو ایجاد کیا جو برا ہے، جو برائی پر مبنی ہے، جو گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا. اور جو لوگ قیامت تک اس کام کو کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور تمام کا گناہ اس اکیلے کو ملے گا، اور سب کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی جتنے بھی ہوں گے. جی جی بے شک. تو یہ حدیث کہاں اپنے باپ کو پڑھائیں گے، یہ کس کو پڑھائیں گے، کس کو سکھائیں گے؟ یہ حرامی. میرے لفظ یہاں سخت ہو جاتے ہیں اس لیے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاتے سمجھاتے مطلب میں ابھی تک اس حد تک پہنچا ہوں کہ ہمارے کئی سارے لوگ، سمجھے بھائی جان؟ اب جس کو نہیں سمجھ میں آتا اللہ تعالیٰ جن کے مہر لگا، الحمدللہ. ہاں، کئی سارے بھائی، کئی سارے میرے دوستوں نے کہا ہے نور حسن بھائی آپ بڑا اچھا جو ہے بتاتے ہو، بہت اچھا سمجھاتے ہو. ہم اس سے پہلے مطلب سمجھتے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور کچھ شیطان ایسے ہیں مطلب دیو کے بندر، دیو کے پجاری، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا، مجھے یہ لوگ گالیاں بکتے رہتے ہیں. تو ان کا تو کام ہی ہے منافقوں کا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نفرت پھیلاتا ہے، یار تم ہمارے رب کو کیا کیا بتا رہے ہو، تم ہمارے نبی کو کیا کیا بتا رہے ہو، تم ہمارے ولیوں کو کیا کیا بول دیتے ہو. شیطانوں، ہم تمہیں نہیں بول سکتے؟ جی بول سکتے ہیں نا. جی. ہمیں بھی اللہ نے اختیار دیا. یہ شیطان کہتے ہیں کہ نبی کو اور علی کو کوئی اختیار نہیں. بالکل. اگر مجھے کوئی اختیار نہیں تو واقعی اللہ کی طرف سے ہوا. جی جی. میں نے اگر ان کو کچھ کہا ہے اپنے نبی کی محبت میں، اپنے ولیوں کی محبت میں، اور رب کا بندہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اپنے رب کی کوئی توہین پسند نہیں، مجھے اپنے نبی کی کوئی توہین پسند نہیں، تو اس کے جواب میں کچھ جواب تو دیا جائے گا نا. میں نے سخت بول دیا تو کیا ہوا؟ میرے رب نے ان کو بولا ہے یار. جس شیطان نے میرے نبی کو معاذ اللہ مجنون کہا تھا، پاگل کہا تھا، اس کے 10 عیب فاش کیے تھے رب نے. آج وہی چیز دو بند دوہرا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ 10 عیب. اور ایک عیب ایسا تھا جس کو وہ خود نہیں جانتا تھا، جو کہ وہ حرامی تھا. باقی 9 عیب وہ خود جانتا تھا. جو 9 برائیاں اس کی بیان کی گئیں وہ خود جانتا تھا کہ ہاں یہ میرے اندر ہیں. مگر جو کہا گیا کہ یہ حرامی ہے، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، تو جا کے اپنی ماں کے سینے میں بیٹھ گیا اور بولا بتا ورنہ قتل کر دوں گا، سچ سچ بتانا کہ میں کس کی اولاد ہوں. تو بتایا اس نے کہ تو ایسے ایسے پیدا ہوا تھا، تو ایک چرواہے کی اولاد ہے، تیرے باپ کی جائیداد بہت زیادہ تھی. تو میں نے سوچا کہ اس کی کوئی جو ہے نسل میں کوئی ہے نہیں، ہے نا. تو یہ وہی حرامی ہیں. اور تھانوی نے بھی اپنا حرامی ہونا ثابت کر دیا اپنی کتاب اشرف السوانے میں. بالکل صحیح کہا. تو یار میں سچائی بتاتا ہوں، لوگوں کو برا لگتا ہے. بھائی میرا انعام بھی ہے نا، اگر میرا کوئی غلط حوالہ ہو تو میں اس کے لیے سزا کے لیے تیار ہوں.
अब इस सच्चाई में तो कार्रवाई होगी ना जी। हाँ। मैं यार मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ, मुसलमानों, मैं ये जानता हूँ कि सारे लोग जो है ना एक जैसी समझ नहीं रखते, सबकी अलग अलग समझ होती है, मगर यार कम से कम इतनी भी समझ नहीं है कि इतनी ही बात में फर्क कर लो कि कहाँ अल्लाह और कहाँ ओम। जी जी। वो शैतान कहता है कि जिसे तुम ओम कहते हो उसे ही तो हम अल्लाह कहते हैं। अरे इतनी सी बात में यार होश में आ जाओ, हैं? कब जागोगे यार गफलत की नींद से? मोहर लग चुकी है। जी 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 जी। हाँ, मैं तो यही समझाता रहता हूँ यार अपने भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाइयों ने तौबा की है और बहुत सारे भाई कॉल करते रहते हैं, बताते हैं नूर हसन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये पहले हमें मालूम नहीं था, मगर आप लोगों की सबकी हम ऑडियो सुनते हैं। आप हम तुम जितने भी साबित लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे चैनल सुने जाते हैं जी माशाअल्लाह, बहुत और लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं माशाअल्लाह जी। तो मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं अपने नबी का उम्मती हूँ, तो मैं अपने नबी के खिलाफ कैसे सुन सकता हूँ यार? अरे वो गुलाम ही क्या जो अपने हुजूर के खिलाफ सुन ले? तो इसीलिए तो मैं सख्त बोल जाता हूँ यार, मेरी सख्ती इनको बुरी लगती है। अरे जिसको सख्ती नहीं करनी आती हुजूर के गुस्ताखों पर, वो मुसलमान मेरे नजदीक है ही नहीं। कुरान का भी यही फैसला है जी। हाँ, वो कैसा मुसलमान है कि अपने नबी की शान में तौहीन सुन के बर्दाश्त कर लिया और रह गया, सहम गया, उसके खून में गर्मी पैदा नहीं हुई। अपने घर वालों की बात आती तो फिर गुस्सा आता है। अरे लड़ाई पे, हाँ लड़ाई पे आमादा हो जाएगा, कत्ल गारत हो जाएगा। हाँ चलिए हजरत, ठीक है फिर है जी। मेरा जी बरकातुहू, ठीक है इंशाअल्लाह, दुआ में याद रखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।